میں ہوں اسامہ بن عبید۔ ہیڈلائنز آپ نے جانی، خبروں کی تفصیلات کی طرف بڑھیں اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ کفر ٹوٹا، خدا خدا کر کے 4 سالوں بعد پورے شہر کو روشن کرنے کی ابتدا کر دی گئی۔ ای ٹرینڈنگ ٹیکنیکل ایویلویشن اور ورک ایوارڈ فائنینشیل بٹ کا مرحلہ مکمل۔ شہر کی 2,72,000 اسٹریٹ لائٹس کی مرمت اور بحالی کا آغاز۔ 1.5 لاکھ سے زائد بند اسٹریٹ لائٹس کو روشن کرنے کا ہوم ورک مکمل کر لیا گیا۔ تفصیلات کے لیے بات کریں گے چیف رپورٹر عمران اکبر سے۔ عمران، آگاہ کیجیے۔ دیکھیے، کفر ٹوٹا، خدا خدا کر کے اسی سلسلے میں شہر لاہور میں جو اسی تک لائٹ کا معاملہ تھا، رات کے ٹائم شہر جو ہے وہ اندھیروں میں نظر آتا تھا، اب روشنیاں جو ہیں ان کو جو ہے آن کرنے کا وقت آ چکا ہے اور اسی سلسلے میں 4 سالوں بعد پورے لاہور کو روشن کرنے کی ابتدا کرنے کے حوالے سے جو ہے فیصلہ سازی کر دی گئی ہے۔ ای ٹرینڈنگ ٹیکنیکل ایویلویشن اور ورک ایوارڈ فائنینشیل بٹ کا مرحلہ بھی مکمل کر لیا گیا ہے۔ شہر کی 2,72,000 اسٹریٹ لائٹ کی مرمت و بحالی کا آغاز کیا جائے گا۔ 1.5 لاکھ سے زائد بند اسٹریٹ لائٹس کو روشن کرنے کا ہوم ورک مکمل، جبکہ 6 دنوں میں 76 کروڑ کی لائٹ سامان پر کنٹرول کرنے کا عمل مکمل کیا گیا ہے۔ اس وجہ سے ابتدائی مرحلے میں 1 لاکھ سے زائد بند پوائنٹس کی بحالی جو ہے خریداری کا آرڈر دے دیا گیا ہے۔ نشتر میں جو ہے اسٹریٹ لائٹ مرمت بحالی کے لیے 14 کروڑ گلبرگ زون میں، 14 کروڑ 90 لاکھ اور اسی طرح راوی زون میں 14 کروڑ 27 لاکھ، فرید آباد زون میں 9 کروڑ 93 لاکھ، زیادہ زون میں اسٹریٹ لائٹ کی مرمت و بحالی پروکیورمنٹ کے لیے 15 کروڑ 96 لاکھ روپے رکھے گئے ہیں۔ شالامار زون میں اسٹریٹ لائٹس کی مرمت و بحالی کے لیے 4 کروڑ 50 لاکھ روپے رکھے گئے ہیں۔ ڈپٹی کمشنر سید موسیٰ رضا کا کہنا ہے کہ باقاعدہ فزیکل لائٹس لگانے کا آغاز ستمبر میں کیا جائے گا، کیونکہ ابھی مانسون کا سلسلہ جاری ہے اور جیسے ہی مانسون کا سلسلہ ختم ہوگا تو ستمبر میں اس کا باقاعدہ طور پر آغاز کر دیا جائے گا۔ جی، آپ کا بہت شکریہ۔ لاہور میں بوسیدہ سیوریج لائنوں کی تبدیلی کا منصوبہ تعطل کا شکار۔ 7 بوسیدہ سیوریج لائنیں اب بھی تبدیل نہ کی جا سکیں۔ واسا نے پنجاب حکومت سے فنڈز کی صدا کی، فنڈز منظور مگر جاری نہ ہو سکے۔ حاجی پارک راج گڑھ سے اسلام پورہ تک سیوریج لائن تبدیلی کا منصوبہ التوا کا شکار۔ زین العابدین سے مزید جان لیتے ہیں، بتائیے زین۔ اسامہ، شہر لاہور میں بیشتر مقامات پر ایسی سیوریج لائنیں موجود ہیں جو کہ بوسیدہ ہو چکی ہیں اور گزشتہ 1 صدی سے ان کو تبدیل نہیں کیا گیا۔ یہی وجہ ہے کہ لاہور میں آئے روز سیوریج لائن ٹوٹنے اور کراؤن فیلئر کے واقعات رونما ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے سڑکیں بھی بیٹھ جاتی ہیں۔ تو لاہور میں اس کی جانب سے تحقیقات کی گئی تو یہ بات سامنے آئی کہ لاہور میں بوسیدہ سیوریج لائنوں کی تبدیلی کا منصوبہ جس کو حکومت کی طرف سے منظور کیا گیا تھا، اس وقت وہ تعطل کا شکار ہو رہا ہے۔ گزشتہ مالی سال میں بڑے تم تراک سے 8 بڑی سیوریج لائنوں کی تبدیلی کا آغاز کر دیا گیا، لیکن لاہور میں مزید 7 بوسیدہ سیوریج لائنیں ابھی بھی تبدیل نہ کی جا سکی۔ واسا نے پنجاب حکومت سے فنڈز کی صدا کی، فنڈز منظور اگر مکمل جاری نہ ہو سکے۔ لاہور ڈیولپمنٹ پروگرام کو ترجیح ملنے سے سیوریج لائنوں کے منصوبے نظر انداز کر دیے گئے۔ اس میں حاجی پاک راج گڑھ سے اسلام پورہ تک سیوریج لائن تبدیلی کا منصوبہ التوا کا شکار ہے۔ اس منصوبے پر 288.524 ملین روپے لاگت آنی تھی، لیکن منصوبے پر تاحال عمل درآمد نہ ہو سکا۔ اسی طرح لیاقت چوک سے سید پور سبزہ زار تک سیوریج اسکیم پر 222.781 ملین لاگت متعین کی گئی، لیکن لیاقت چوک منصوبے پر بھی تاحال کوئی عمل درآمد نہ ہو سکا۔ رحمت علی روڈ، ملت چوک، الممتاز روڈ، ندیم شہید روڈ، سمنا آباد کا منصوبہ بھی ادھورا ہے۔ بکر منڈی سے بند روڈ تک سیوریج لائن تبدیلی کا منصوبہ بھی مکمل نہ ہو سکا۔ گنج بخش روڈ اور ملیکہ آبادیوں کی سیوریج لائن تبدیلی کا منصوبہ بھی ابھی تک ادھورا ہے۔ روڈ اچھلا کی سیوریج لائن تبدیلی کا منصوبہ بھی مکمل نہ ہو سکا۔ اس منصوبے پر 340.846 ملین روپے لاگت آنی تھی، تاحال یہ منصوبہ بھی تعطل کا شکار ہے۔ پراشا کالونی سے گجر پورہ شادرہ تک سیوریج لائن بوسیدہ ہو چکی ہے، اس کی تبدیلی بھی نہ ہو سکی۔ تمام التوا شدہ منصوبوں کی مجموعی لاگت 1,36,02,97,000 روپے تھی۔ اربوں کے فنڈ لگنے کے باوجود لاہور میں سیوریج لائنیں کی ٹوٹنے کا جو خطرہ ہے وہ ابھی تک برقرار ہے۔ جی ٹھیک ہے زین، آپ کا شکریہ۔ تعلیمی اداروں میں ویسٹ سیگریگیشن کوڑا دان کی تنصیب لازم قرار دے دی گئی ہے۔ ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز میں ویسٹ مینجمنٹ کو یقینی بنانے کی ہدایت۔ بلو بن ریسائکلنگ ویسٹ کاغذ، پلاسٹک، دھات، شیشہ کے لیے مخصوص، اور جبکہ بلیک یا گرے بن نان ریسائکلنگ ویسٹ کے لیے استعمال ہوں گے۔ تفصیلات کے لیے بات کریں گے عاطف پرویز سے۔ عاطف، آگاہ کیجیے۔
जी बिल्कुल, लाहौर को बेहतर करने के हवाले से मुख्तलिफ इक़दाम किए जा रहे हैं। इसमें आप इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन अथॉरिटी की जानिब से तालीमी इदारों को एक मुरासला लिखा गया है। इसमें कहा गया कि पंजाब के तालीमी इदारों में वेस्ट सेग्रीगेशन कूड़ादान की तस्दीक जो है वो लाजमी होगी। एजुकेशन इंस्टीट्यूट में वेस्ट मैनेजमेंट को यकीनी बनाने की हदायत की गई है। ग्रीन कूड़ादान, बायो टेक्निकल ऑर्गेनिक वेस्ट के मुख्तलिफ किए गए हैं। जो कूड़ादान है उनमें रिसाइकलिंग दिए जैसे कागज, प्लास्टिक, धात, शीशा के लिए मखसूस लेते हैं, जबकि ब्लैक या ग्रे जो कूड़ादान है उसमें नॉन रिसाइकलिंग वेस्ट के लिए इस्तेमाल होते हैं। कच्चा, ताज़ा और विजिटर को ठिकाने लगाने के लिए लोगों से रहनुमाई देने की हदायत की गई है। सीपीए पंजाब के तीन इदारों में वेस्ट सेग्रीगेशन की मॉनिटरिंग करेंगे। वेस्ट सेग्रीगेशन पर अमल दरामद अदालत की सर्टिफिकेट जारी किया जाएगा। सर्टिफिकेट मालियाती फायदा अदालत की शराकत का इख्तिलाफ होगा। इस हवाले से पंजाब के तमाम सरकारी स्कूल, कॉलेजेस और इसके साथ साथ यूनिवर्सिटीज हैं उनको ये मुरासला भिजवाया गया है, जिसमें कहा गया है कि पुलिस तौर पर वेस्ट सेग्रीगेशन के हवाले से अलग अलग कूड़ादान जो है वो निस्बत किए गए हैं। आपका बहुत शुक्रिया। इंडस्ट्रियल मीटर्स के बाद सिंगल और 3 फेज खराब मीटर्स की तब्दीली के लिए भी MNT रिपोर्ट लाजमी करार। लेस्को ने खराब मीटर्स की तब्दीली के लिए नई पॉलिसी पर अमल दरामद शुरू कर दिया। ज़राए लेस्को के मुताबिक इंतजामिया की जानिब से फील्ड अफसरान को खराब मीटर्स पर डिफेक्टो कोड लगाने से भी रोक दिया। मीटर जलने और ख़राब होने की सूरत में पहले MNT मौका पर चेक करेगी। फहद अमीन से मज़ीद जानते हैं। फहद बताइए, इस तरह करने से क्या सार्फिन को कोई फ़ायदा हासिल होगा? जी बिल्कुल, लेस्को इंतजामिया की जानिब से सार्फिन को फायदा देने की बजाय सार्फिन के लिए नई मुश्किल जो है वो बना दी है कि इंडस्ट्रियल मीटर्स के बाद अब सिंगल और 3 फेज मीटर जो खराब होंगे उनकी तब्दीली के लिए भी जो है वो MNT रिपोर्ट को लाजमी करार दे दिया गया है। लेस्को ने खराब मीटर की तब्दीली के लिए नई पॉलिसी पर अमल दरामद जो है वो शुरू भी कर दिया है और लेस्को ज़राए का ये कहना है कि मीटर तब्दील करवाने वाले सार्फिन की मुश्किलात में अब मजीद जो है वो इजाफा हो गया है, क्योंकि MNT के पास स्टाफ की बहुत ज्यादा कमी है और जो है वो रोजाना की अगर एक माह की देखा जाए तो एक माह में तकरीबन एक सब डिवीजन में 70 से 80 मीटर खराब होते हैं। तो ये मुमकिन नहीं है कि एक MNT की टीम जो एक हफ्ते के बाद एक सब डिवीजन का चक्कर लगाती है वो तमाम मीटर को चेक करे। इंतजामिया की जानिब से फील्ड अफसरान को खराब मीटर पर डिफेक्टिव कोड लगाने से भी रोक दिया गया है। मीटर जलने और खराब होने की सूरत में पहले MNT जो है वो मौका पर चेक करेगी, ये टीम ऑपरेशन को रिपोर्ट करेगी, जिसके बाद सारे के बिल पर डिफेक्टिव कोड लगाया जाएगा। बिलों पर डिफेक्टिव कोड लगाने के बाद मीटर तब्दीली का अमल शुरू किया जाएगा। नई पॉलिसी से खराब मीटर तब्दीली का अमल कई रोजा जो है वो तवील जो है वो बन जाएगा। इस दौरान खराब मीटर्स पर सारे को एवरेज बिल डाला जाएगा। नई पॉलिसी से पहले भी जो है वो खराब मीटर्स 3 से 4 माह के बाद तब्दील किए जाते हैं, ताहम MNT का स्टाफ बहुत ज्यादा कम होने की वजह से ये दौरानिया जो है वो मजीद बढ़ जाएगा। लेस्को जो फील्ड अफसरान हैं उनका कहना है कि MNT टीम के लिए मुमकिन नहीं कि वो तमाम मीटर जो है वो सिंगल फेज भी चेक करे और उसके जो है वो सर्टिफिकेट दे। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मुबैना नाकस हिकमत अमली के बाइस इजाफी बोझ जो है वो एक तो स्टाफ पर पड़ेगा और दूसरा सार्फिन पर जो है वो पड़ेगा, क्योंकि अगर 2 माह भी जो है वो मीटर तब्दील नहीं होता तो 2 माह तक सारिफ को एवरेज बिल जो है वो चार्ज किया जाएगा और जो कई गुना ज्यादा होता है। लेस्को ज़राए का कहना है कि लेस्को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स सार्फिन को सहूलत देने की बजाय इसकी मुश्किलात में जो है वो मजीद इजाफा कर रहा है। लेस्को में नया कनेक्शन और मीटर तब्दील करवाना अजाब बन चुका है। लेस्को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इस तरफ तवज्जो नहीं दे रहा। जी ठीक है फहद, आपका शुक्रिया। पुलिस ऑफिसर खुली कचहरियों में नींद के मजे लेने लगे। DIG इन्वेस्टिगेशन की खुली कचहरी में SP इन्वेस्टिगेशन ख्वाब खरगोश के मजे लेते रहे। पंजाब हुकूमत ने अवाम को इंसाफ की फराहमी के लिए खुली कचहरियों के इनेकाद का हुक्म दिया था। तफसीलात के लिए बात करेंगे मुजाहिद लतीफ़ से। मुजाहिद बताइए इस बारे। बिल्कुल जी, हुकूमत पंजाब और बिलखसूस वज़ीर-ए-आला पंजाब की जानिब से लोगों को इंसाफ फराहम करने के लिए खुली कचहरियों के इनेकाद करने का हुक्म दे रखा है और उस पर अमल दरामद करते हुए DIG इन्वेस्टिगेशन लाहौर जो है वो खुली कचहरियों का मसलसल इनेकाद भी कर रहे हैं और इंसाफ भी फराहम करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन पुलिस की खुली कचहरियां और अफसरान नींद के मजे लेने लगे हैं। अवाम को इंसाफ फराहम करने के लिए हुकूमत की जानिब से खुली कचहरियों का जो इनेकाद करने का हुक्म दिया गया है, ऐसे ही एक खुली कचहरी में DIG इन्वेस्टिगेशन अवामी मसाइल सुन रहे हैं और SP इन्वेस्टिगेशन सिटी जो है वो ख्वाब खरगोश के मजे ले रहे हैं। ये फुटेज में भी वाज़ह तौर पर देखा जा सकता है। SP इन्वेस्टिगेशन सिटी फरदाबाद
किस तरह नींद के मजे ले रहे हैं, ये फुटेज में जो है वो तमाम चीजें मंजरेआम पर आ गई हैं। डीआईजी इन्वेस्टिगेशन ने सिटी डिवीजन में खुली कचहरी मुनक्किद की। इन्वेस्टिगेशन सिटी जो डिवीजन का इंचार्ज होता है स्टेज पर बैठे सो रहा है, ये फुटेज में देखा जा सकता है। बड़े ऑफिसर लोगों के मसाइल सुन रहे हैं और सोए हुए एसपी को कैमरे की आंख ने अक्सबंद कर लिया है। ये डीआईजी इन्वेस्टिगेशन जो मुसलसल आवाम को इंसाफ फराहम करने के लिए, उनकी दाद रसी के लिए मुख्तलिफ डिवीजन में जो है वो खुली कचहरियों का इनकाद करते हैं। और ऐसी ही खुली कचहरी एक सिटी डिवीजन में जो है वो मुनक्किद हुई, जिसमें एसपी सिटी खुद मौजूद थे। डीआईजी इन्वेस्टिगेशन खड़े हुए लोगों के मसाइल सुन रहे हैं और एसपी इन्वेस्टिगेशन सिटी जो है फरत अब्बास वो सोए हुए कैमरे की आंख में रिकॉर्ड हो गए। जो मंजर हम स्क्रीन पर भी दिखा सकते हैं, देखे भी जा सकते हैं। और ये तमाम जो फुटेज है इसको कैमरे की आंख ने बंद कर दिया। लोगों के मसाइल सुनने वाले खुद ही स्टेज पर बैठे हुए सो रहे हैं और तवक्को की जा सकती है कि ये किस तरह का इंसाफ जो है इनकी जानिब से फराहम होता होगा। जी, आपका बहुत शुक्रिया मुजाहिद। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी लाहौर प्राइवेट स्कूलों में फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट पर अमल दरामद करवाने में नाकाम। बेशतर स्कूलों की जानिब से 10% गरीब बच्चों को मुफ्त पढ़ाने के हवाले से गलत डाटा जमा करवाने का इंकशाफ। स्कूलों की जानिब से ज़्यादातर असातिज़ा के बच्चों और सिफारिश पर फीस में रायत देने का डाटा फराहम किया गया। आतिफ परवेज से मज़ीद जानते हैं। आतिफ बताइए। जी बिल्कुल, कंपलसरी एजुकेशन एक्ट 2014 के रूल जो है वो बनाकर रवा साल इसको नाफिज किया गया था और इस रूल के मुताबिक, कानून के मुताबिक हर प्राइवेट स्कूल में 10% बच्चों को मुफ्त तालीम दी जानी है। तो ये अब इस रूल के हवाले से तमाम डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटीज को हदायत की गई थी कि वो इन 10% बच्चों का जो डाटा इकट्ठा करें। लेकिन अब ज़राए ने ये बात बताई है कि बेशतर प्राइवेट स्कूल की जानिब से 10% बच्चों को मुफ्त पढ़ाने के हवाले से डाटा जो है वो जमा करवाया गया है। स्कूलों की जानिब से ज़्यादातर असातिज़ा के बच्चों और सिफारिश पर फीस में रायत देने का डाटा फराहम किया गया है। कुछ बच्चों को 80% रायत न लेने पर भी फीस में रायत दी गई है। पंजाब फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन कंपल्सरी एक्ट के तहत प्राइवेट स्कूलों में 10% गरीब बच्चों को कम ज्यादा रियायत और मुफ्त तालीम देने की हिदायत की गई थी। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी लाहौर को हुकूमत के अहकामात के मुताबिक 10% मुफ्त बच्चे पढ़ाने का जो डाटा करने में मुश्किलात का भी सामना है। एजुकेशन अथॉरिटी लाहौर ने गलत डाटा फराहम करने पर अब एक बार फिर से प्राइवेट स्कूलों से बच्चों का डाटा मांग लिया है और का कहना है कि ये प्राइवेट स्कूलों में 10% फ्री बच्चों को पढ़ाने के हवाले से 24 घंटे में परतवा भर भिजवाएं। पंजाब फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट पर 100% अमल दरामद करवाया जाएगा, ये कहना है एजुकेशन अथॉरिटी लाहौर के हुकाम का। जी ठीक है आतिफ, आपका शुक्रिया। महंगाई के सताए आवाम को कहीं रिलीफ न मिल सका। प्याज 110, टमाटर 120, लहसुन 380, अदरक 620, सब्ज मिर्च 150 रुपये किलो, सेब 420, आड़ू 400, पपीता 600, खुबानी 380 रुपये किलो में दस्तयाब। मुर्गी गोश्त की फ़ी किलो कीमत 595 रुपये मुकर्रर। जाहिद आबिद से मजीद जानते हैं, बताइए जाहिद। जी बिल्कुल, मार्केट में सब्जियों की कीमतों में भी इजाफा देखा जा रहा है और चिकन ब्रायलर गोश्त की कीमत तो पहले ही इंतहाई सतह पर पहुंची हुई है। आज जो मार्केट की सूरत हाल है उसमें प्याज और लहसुन की कीमत में इजाफा हुआ है। प्याज 10 रुपये फ़ी किलो, मज़ीद इसकी कीमत बढ़ाई गई है आज, और 75 रुपये फ़ी किलो सरकारी कीमत मुकर्रर हुई है। प्याज की कीमत गुज़श्ता चंद हफ्तों से 60 और 65 रुपये के दरमियान मुकर्रर हो रही थी, लेकिन आज ये 75 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर की गई है, जबकि मार्केट में ये तकरीबन 90 से 100 रुपये फ़ी किलो तक जा पहुँचे। इसी तरह लहसुन की कीमत में भी 10 रुपये फ़ी किलो इजाफा हुआ है, जिसकी सरकारी कीमत 280 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर की गई और ये मार्केट में तकरीबन 350 रुपये फ़ी किलो तक बेचा जा रहा है। जबकि जो दीगर सब्जियाँ हैं उनकी भी इसी किस्म की सूरत हाल है। टमाटर की कीमत 95 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर की गई है, जबकि मार्केट में तकरीबन 120 से 140 रुपये फ़ी किलो तक बेचा जा रहा है। इसी तरह टिंडे की सरकारी कीमत 200 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर हुई है, जबकि मार्केट में ये तकरीबन 250 से 280 रुपये फ़ी किलो तक बेचे जा रहे हैं। ब्रायलर गोश्त की कीमत गुज़श्ता चंद रोज़ से इंतहाई सतह पर इंतज़ामिया की जानिब से जो फार्मूला है उसके मुताबिक लॉक की गई है और आज भी 595 रुपये फ़ी किलो इंतहाई सतह पर इसकी कीमत कैप की गई है, जबकि मार्केट में तकरीबन 30 से 40 रुपये फ़ी किलो इजाफी कीमत पर बेचा जा रहा है। यानी कि मार्केट में इस तकरीबन 620 से 630 रुपये फ़ी किलो तक
चिकन ब्रायलर गोश्त दस्तयाब हो रहा है। मार्केट ज़राए के मुताबिक चूँकि मार्केट में कीमत लॉक कर दी गई है इंतज़ामिया की जानब से, लेकिन जो फार्मर्स हैं उनकी जानब से महंगे दामों बेचा जा रहा है इस वक्त, जिसकी वजह से मार्केट में ब्रायलर गोश्त की कीमत में इजाफा देखा जा रहा है, जबकि अंडे बदस्तूर 295 रुपये फ़ी दर्जन है। जी आपका शुक्रिया जाहिद। चीनी के मुकर्रर करदा निर्खों पर अमल दरामद ना करवाने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन। 24 घंटों के दौरान 287 दुकानदारों के खिलाफ चीनी की कीमतों में नाजायज़ मुनाफाखोरी पर कार्रवाइयाँ की गई। तर्जुमान प्राइस कंट्रोल के मुताबिक पंजाब भर में 30 अफराद गिरफ्तार, 257 अफराद को जुर्माने आयद किए गए। चीफ रिपोर्टर इमरान अकबर से मजीद जानते हैं। बताइए इमरान, इन कार्रवाइयों बारे। देखिए उसामा, चूंकि चीनी का मामला है, चीनी पर ग्राम फरोशी तो जारी है और 100% जो है चीनी लोगों को ग्राम फरोशी और ना मिलने की जो है शिकायत भी आ रही है। इसी सिलसिले में क्रैकडाउन भी किया जा रहा है और चीनी के मुकर्रर करदा नरखों पर अमल दरामद ना करने वालों के खिलाफ ये क्रैकडाउन किया जा रहा है। 24 घंटों के दौरान महकमा प्राइस एंड कंट्रोल कमोडिटीज की तरफ से बताया जा रहा है कि 287 दुकानदारों के खिलाफ चीनी की कीमतों में नाजायज मुनाफाखोरी पर कार्रवाइयाँ अमल में लाई गई हैं। पंजाब भर में 30 अफराद को गिरफ्तार किया गया है। इमरान, जब खबर पढ़ी जाती है, सुनी जाती है, तो ये कहा जाता है दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई की गई, जबकि दुकानदारों का कहना है कि हमें चीनी सस्ती नहीं मिल रही तो हम सस्ती कैसे बेचें। क्या किसी सप्लायर के खिलाफ भी कार्रवाई की गई या किसी गोदाम ओनर के खिलाफ भी कभी कार्रवाई की गई है? देखिए उसामा, मामला चूंकि इस वाले से चीनी के स्टेक होल्डर्स का है और ये चीनी का मामला जब तक 2 लाख मैट्रिक टन चीनी पाकिस्तान में नहीं आती तब तक ये अक्टूबर तक रहेगा। और ये क्रैकडाउन भी इसीलिए किया जा रहा है कि मुनाफाखोरी की जाती है, शहरियों की शिकायत आती है, उसके बाद इन दुकानदारों के खिलाफ भी जो है वो क्रैकडाउन किया जाता है। चूंकि दुकानदारों का भी मामला ये है कि दुकानदार कहते हैं कि हमें चीनी महंगी मिलती है, हम महंगी चीनी कैसे सस्ती बेचें। इसी तरह जो है पीछे स्टेक होल्डर्स भी कहते हैं कि हमारे साथ जो मामला तय है वो है 165 पे एक्स मिल रेट के, और इसके हवाले से हम चीनी जो है वो भी जो है उसके प्राइस पर बेच रहे हैं। मगर इस वजह से दुकानदारों को मुनाफा जो है चीनी पर नहीं मिलता, चूंकि जो पहुंच होती है वो 271-72 पर पहुंच जाती है और इसके 171-72 पे पहुंच जाती है, तो जिस पर चीनी जो है वो मार्केट में 190 और 200 रुपए तक जो है वो बेची जाती है। और इसी सिलसिले में जो है कार्रवाइयां भी की जाती हैं, मगर ग्राम फरोशी जो है वो अरूज पर है और कई दुकानों पर तो है चीनी मिलती ही नहीं है। जब कोई गाहक जाता है तो उसको 2 किलो तक भी चीनी नहीं मिल रही और इसी सिलसिले में जो है इंतजामिया जो है वो कार्रवाइयां करती है। मगर ये जो पकड़ दकर है, ग्राम फरोशी है, ये अब तो बताया ही जा रहा है, जरा ये बता रहे हैं कि अक्टूबर तक जारी रहेगी, क्योंकि चीनी का मामला तब तक नहीं ठीक होगा जब तक उसकी रसद और तलब को ठीक नहीं किया जाएगा। रसद और तलब में फर्क आने की वजह से ये चीनी जो है तो उस पर ग्राम फरोशी की जा रही है। जबकि लाहौर शहर में अगर देखा जाए तो लाहौर शहर में अगर अभी तक जो है वो चीनी के मामला महकमा प्राइस एंड कंट्रोल की तरफ से बताया जा रहा है, दावा किया जा रहा है बकायदा कि चीनी के मामला काफी हद तक बेहतर हो गए हैं, मगर ऐसा होता हुआ नजर नहीं आ रहा। और एक तरफ से ये भी बताया जाता है, ये बता रहे हैं कि जो चीनी का मामला है वो अक्टूबर के महीने में जाकर ठीक होगा, चूंकि 2 लाख मैट्रिक टन चीनी के हवाले से टेंडर हो चुका है, उसकी बिड हो चुकी है और उसको मंगवाने के लिए जो है वो अहकाम दिए जा चुके हैं। मगर ये चीनी अब 2 माह बाद जाकर आएगी, यानी कि अक्टूबर में जब वो चीनी पहुंचेगी उसके बाद जो है मार्केट में नई चीनी जो है नजर आएगी। मगर इसके साथ साथ तमाम मामला जारी हैं और ये जो क्रैकडाउन है, ग्राम फरोशी जो है, ये इसकी पकड़ दकड़ का सिलसिला जो है वो इसी तरह होता रहेगा, क्योंकि शहरियों की शिकायत तो रुकनी नहीं है, उन्होंने करनी है और वो जेन्युइन शिकायत है कि उनको चीनी नहीं मिलती और महंगी चीनी मिलती है। महंगी चीनी की वजह से जो है शहरियों की शिकायत आती हैं और उसका अजाला करने के लिए जो है वो ये रेड किए जाते हैं, गिरफ्तारियां की जाती हैं, पर्चे कटाए जाते हैं और उसके मुकदमात भी दर्ज करवाए जाते हैं और जुर्माने भी किए जाते हैं। इसी सिलसिले में महकमा प्राइस कंट्रोल कमोडिटीज जो है वो रोजाना जो है वो बाकायदा तौर पर बताता है कि इतने लोग जो है उनके खिलाफ जुर्माने और मुकदमा दर्ज करवाए गए हैं और जुर्माने किए गए हैं। मगर इसके साथ साथ अभी तक चीनी का मामला जो है वो हल होता हुआ नजर नहीं आ रहा। इसी सिलसिले में सेक्रेटरी प्राइस कंट्रोल कमोडिटीज डॉक्टर एहसान भुट्टा का कहना है कि चीनी के हवाले से जो मामला हैं वो स्टेक होल्डर से रोजाना की बुनियाद पर मीटिंग्स भी होती हैं, इजलास भी होते हैं और इसके हवाले से जो है पहले लाहौर में 2 मिल्स जो है वो चीनी सप्लाई कर रही थी, अब हमने 3 से 4 मिल्स जो है वो उनको लाहौर शहर की खपत पूरी करने के लिए कहा है और इस हवाले से चीनी जो है रोजाना की बुनियाद पर
ठीक आ रही है, सप्लाई ठीक आ रही है, मगर इसके मैकेनिज्म पर जो है फॉलो अप ना होने की वजह से, क्योंकि बैकलॉग इतना ज्यादा भर चुका हुआ है कि अगर एक दिन पहले जो चीनी का रेट था और चीनी की जो सप्लाई थी वो आ जाती है, तो अगले दिन उसकी सप्लाई का जो है उसका जो रसद और तलब है उसमें जो है इजाफा होता है, जिसकी वजह से मार्केट से चीनी गायब हो जाती है। और इसके साथ साथ प्राइवेट सेक्टर की अगर बात की जाए तो प्राइवेट सेक्टर भी चीनी की जो खपत है, जो तलब है, वो मार्केट से उठा लेता है, क्योंकि कमर्शियल बुनियादों पर प्राइवेट सेक्टर को ऑप्शन नंबर 2 पे रखा गया है। ऑप्शन नंबर 2 पे रखने की वजह से सरकारी तौर पर उनको चीनी पहले नहीं दी जाती, जिसकी वजह से मार्केट से चीनी जो है तो बताया जा रहा है, इतलात ये आ रही है कि उठा ली जाती है, जिसकी वजह से आम शहरी को ये तमाम जो है परेशानी का सामना करना पड़ता है और इसके साथ साथ महंगी चीनी भी खरीदनी पड़ती है। और ग्राम फरोशी जो है उसको बाकायदा तौर पर फिर निपटने के लिए जब हुकूमत और इंतजामी जो इदारे हैं वो हरकत में आते हैं, तो फिर इस तरह से पर्चे और मुकदमात और इसके साथ साथ जुर्माने करवाए जाते हैं। जी ठीक है इमरान, आपका शुक्रिया। शामिल करेंगे ब्रेक, लेकिन उससे पहले लाहौर न्यूज़ फटाफट। मरीजों के पुराने रिकॉर्ड का मामला, पीएससी इंतजामिया ने 20 साल पुराना रिकॉर्ड मरीजों को देने का इश्तिहार जारी कर दिया। पीएससी में मरीजों का पुराना रिकॉर्ड जून 2022 तक तल्फ किया जा रहा है। एमएसपीएससी का कहना है कि मरीजों के पुराने रिकॉर्ड को संभालना और महफूज करना मुश्किल हो गया है। पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में मरीजों के पुराने रिकॉर्ड का ये मामला है। पीएससी इंतजामिया ने 20 साल पुराना रिकॉर्ड मरीजों को देने का इश्तिहार जारी कर दिया। पीएससी में मरीजों का पुराना रिकॉर्ड जून 2022 तक तल्फ किया जा रहा है। एमएसपीआईसी का कहना है कि मरीजों के पुराने रिकॉर्ड को संभालना और महफूज करना मुश्किल हो गया है। तफसीलात के लिए बात करेंगे मोहम्मद बिलाल से। बिलाल, आगाह कीजिए। जी बिल्कुल, पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में मरीजों के पुराने रिकॉर्ड का ये मामला था और पीएससी इंतजामिया ने पुराना जो 20 साल से जायद का रिकॉर्ड था मरीजों को देने का इश्तिहार जारी कर दिया है। इस इश्तिहार में कहा गया कि पीएससी में मरीजों का पुराना रिकॉर्ड जून 2022 तक तल्फ किया जा रहा है और 30 अगस्त तक मरीज अपना रिकॉर्ड कंप्यूटर सेक्शन से वजू कर सकते हैं, जबकि रिकॉर्ड गुम होने की सूरत में इदारा जिम्मेदार नहीं होगा। इस हवाले से एमएस जो पीएससी हैं डॉक्टर आमिर भट्ट, इनकी जानिब से कहा जा रहा है कि मरीजों को पुराने रिकॉर्ड को संभालना महफूज करना मुश्किल हो चुका है। मरीजों के लीगल जो डॉक्यूमेंट्स हैं, डेथ सर्टिफिकेट और हेल्थ कार्ड के जो डॉक्यूमेंट्स हैं, इनको महफूज रखा जाएगा और मरीजों की एंजियोप्लास्टी और इकोकार्डियोग्राफी का रिकॉर्ड भी कंप्यूटर में महफूज रखा जाएगा, जबकि मरीजों के रिकॉर्ड फ्राहम करने के लिए मजमूई तौर पर 3 इश्तिहार जारी किए जाएंगे। अभी पहला इश्तिहार जारी किए हैं, 2 अभी बाकी हैं। मरीजों की बड़ी तादाद अपना रिकॉर्ड वापस लेकर जा रही है। जी, आपका शुक्रिया मोहम्मद बिलाल। आपको बताएं, दरियाए रावी में जस्टर के मुकाम पर पानी का बहाव 53,000 क्यूसिक रिकॉर्ड। शादरा के मुकाम पर पानी का बहाव 36,000 क्यूसिक तक रिकॉर्ड किया जा रहा है। रेस्क्यू इंचार्ज बाबर का कहना है कि ताहाल पानी का बहाव अंडर कंट्रोल है। सारन बजाकर रावी के इर्द गिर्द आबादी को अलर्ट भी जारी कर दिया। हर किस्म की हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए तैयार हैं। मजीद जानते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ सामिया सईद से। बताइए सामिया। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त दरियाए रावी पर मौजूद हूँ और यहाँ पर ये सूरत हाल देखी जा रही है कि पानी का बहाव जो है उसमें उतार चढ़ाव देखा जा रहा है। अलबत्ता पीडीएमए की जानिब से भी जो है वो ये जारी किया गया है कि पानी के बहाव में जो है वो आइंदा आने वाले दिनों में मजीद इजाफे का खदशा भी जाहिर कर दिया गया है। अलबत्ता ताहाल जसड़ के मकाम पर पानी का बहाव 53,000 क्यूसिक रिकॉर्ड किया जा रहा है, जबकि शादरा के मकाम पर सूरत हाल जो है वो नॉर्मल है और पानी का बहाव जो है वो 36,000 क्यूसिक रिकॉर्ड किया जा रहा है। मेरे साथ इस वक्त रेस्क्यू इंचार्ज भी मौजूद है, उनसे भी बात करते हैं। जी सर, बताइएगा आइंदा आने वाले दिनों में क्या सूरत हाल रहने वाली है? कोई सैलाबी सूरत हाल पैदा हो सकती है? जी, इस सीजन में अभी तक कल सबसे ज्यादा हमने इधर वाटर लेवल देखा है। कल दरिया के अंदर इधर लाहौर में 39,000 क्यूसिक तक पैमाइश की गई है, लेकिन यह है कि अभी उसमें स्लाइटली डिक्रीज हमने देखा है। इस टाइम 36,000 क्यूसिक है और पीछे जसड़ से भी इतलात हैं कि पानी उतरना शुरू हो गया है, तो कल तक मजीद इंशाल्लाह कम हो जाएगा। अगर अप स्ट्रीम कोई ज्यादा बारिशें वगैरह मजीद आने वाले दिनों में नहीं होती तो फिर हम देखेंगे कि पानी की सतह काफी हद तक मजीद कम हो गई है। और दूसरा ये बताता चलूं कि इस टाइम जो वाटर फ्लो है इसको हम सैलाबी सूरत हाल नहीं कह सकते। इतना मानसून के सीजन में दरिया में नेचुरल पानी इतना होना चाहिए लाइव रखने के लिए। अपनी तैयारियों के हवाले से बताऊं कि रूटीन में ही जैसे मानसून सीजन का स्टार्ट होता है तो रेस्क्यू 1122 बारादरी के मुकाम पर हम अपना कैंप एस्टेब्लिश कर लेते हैं।
इस साल भी तकरीबन 1 महीना हो गया कैंप लगे हुए। इस दौरान हमने मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ की हैं, लोगों को वार्निंग्स जारी की हैं, अलर्ट जारी किए हैं। जो दरिया के बेड के अंदर सेटलमेंट्स हैं, डेरा जात वगैरह लोगों ने इस्टेब्लिश किए होते हैं, उनको इधर से वैक्यूएट कराया है, मूव कराया है, वार्निंग्स जारी की हैं और अभी तक सूरत हाल अंडर कंट्रोल है। हम फुली इक्विप्ड हैं। हमारी बोट्स जो हैं अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम भी पेट्रोलिंग करती हैं और कोई भी वल्नरेबल चीज़ हमारे सामने आती है तो उसकी निशानदेही करके मुतलका महकमों को इतला दे के उसको उधर से मूव कराया जाता है। आज बिल्कुल उनकी जानिब से कहा जा रहा है कि ताहाल सूरत हाल जो है वो अंडर कंट्रोल है, मगर अगर और बारिशें होती हैं और शहर लाहौर समेत मुल्क के दीगर हिस्सों में तूफानी बारिशें होती हैं तो ये देखा जाएगा कि पानी के बहाव में जो है वो मजीद इजाफे का खदशा भी जाहिर कर दिया जाएगा। तो हम इसी के पेश नज़र जो है वो रेस्क्यू एहलकारों की जानिब से कहा जा रहा है कि तैयारियां जो हैं वो मुकम्मल कर ली गई हैं, तमाम बोट्स जो हैं वो हमारी रेडी हैं और यहाँ पर सायरन भी बजाए जा रहे हैं। शहरियों को ये भी कहा जा रहा है कि एहतियाती तदाबीर पर लाजमी अमल करें। अगर मेरा कैमरामैन अदनान आपको दिखा सके तो आप यहाँ पर ये सूरत हाल भी देख सकते हैं कि ताहाल तो पानी का जो बहाव है वो अंडर कंट्रोल है, मगर शहर लाहौर समेत मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में जो है वो तूफानी बारिशों का इम्कान महकमा मौसमियात की जानिब से जो है वो बताया जा रहा है और अगर तूफानी बारिशें होती हैं तो पानी के बहाव में जो है वो मजीद इजाफा हो सकता है। तमाम शहरी जो है वो एहतियात लाजमी बरतें और महफूज मकामात का रुख कर लें। जी आपका शुक्रिया सामिया। रायबरेली कमिश्नर सैयद मूसा रजा का तहसील नशर का दौरा, इंसदाद डेंगू सर्विलेंस का फील्ड में जायजा लिया। CEO हेल्थ ने डिप्टी कमिश्नर लाहौर को इंसदाद डेंगू इकदाम पर तफसीली ब्रीफिंग दी। डिप्टी कमिश्नर लाहौर की डेंगू लार्वा मिलने पर फौरी तलफी और सख्त कार्रवाई की हिदायत। तफसीलात जानेंगे चीफ रिपोर्टर इमरान अकबर से। इमरान आगाह कीजिए। देखिए, मौसम बरसात के मौसम के साथ साथ अब मौजूदा सूरत हाल ये है कि अब शहर में जो है डेंगू लार्वा की अफजाइश का मामला है और इस डेंगू लार्वा की अफजाइश के हवाले से DC लाहौर ने आज निस्तर के अटारी गांव का दौरा किया है। UC 242 के इतराफ के इलाकों का भी दौरा किया गया है, तफसीली दौरा किया गया जिसमें तमाम लाइट महकमे ज़्यादा डेंगू के लिए मरबूत हिकमत अमली अपनाएं, जिसमें DC लाहौर ने कहा है कि डेंगू टीमों की कारकर्दगी को रोजाना की बुनियाद पर मॉनिटर किया जाए, इंडोर आउटडोर सर्विलेंस की जाए, डेंगू के हॉटस्पॉट पर खसूसी तवज्जो दी जाए, शहरियों को डेंगू से बचाव के लिए एहतियाती तदाबीर से आगाह किया जाए, डेंगू वर्कर्स की हाजिरी और कारकर्दगी पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। वहाँ के ताउन से ही डेंगू के खिलाफ जंग जीती जा सकती है। ज़िला इंतजामिया डेंगू पर काबू पाने के लिए तमाम वसाइल बुरुकार ला रही है। जी आपका शुक्रिया। आगे बढ़े और आपको बताएं, निजी हाउसिंग सोसाइटी के मालिक के जिस्मानी रिमांड के खिलाफ केस की समाअत। अदालत ने सर्कल अफसर एंटी करप्शन और तफ्तीशी अफसर को ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया। अदालत ने मुतल्लिका प्रोसिक्यूटर को भी ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया। एडिशनल सेशन जज समीना हयात ने समाअत की। आपको अपडेट कर रहे हैं, निजी हाउसिंग सोसाइटी के मालिक के जिस्मानी रिमांड के खिलाफ केस की समाअत हुई है। अदालत ने सर्कल ऑफिसर एंटी करप्शन और तफ्तीशी अफसर को ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया। अदालत ने मुतल्लिका प्रोसिक्यूटर को भी ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया है। एडिशनल सेशन जज समीना हयात ने समाअत की। आपको अपडेट कर रहे हैं, निजी हाउसिंग सोसाइटी के मालिक के जिस्मानी रिमांड के खिलाफ केस की समाअत। अदालत ने सर्कल ऑफिसर एंटी करप्शन और तफ्तीशी अफसर को ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया। अदालत ने मुतल्लिका प्रोसिक्यूटर्स को भी ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया। एडिशनल सेशन जज समीना हयात ने समाअत की। LDA टीमों की मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाइयाँ। गैर कानूनी कमर्शियल इमारतों कमर्शियल फीस की अदम अदायगी पर 39 इमलाक सरबा मोहर। टीमों ने केनाल रोड, LDA कंट्रोल एरिया, वहदत रोड, रसबलवार में ऑपरेशन किया। तफसीलात जानेंगे ज़ैनुल आबदीन से। ज़ैन बताइए इस बारे। गैर कानूनी कमर्शियल इमलाक के खिलाफ LDA टीमों की तरफ से कंट्रोल्ड एरिया में ऑपरेशन करते हुए 39 इमलाक को सर्ब मोहर कर दिया गया। इन इमलाक की तरफ से कमर्शियल फीस अदा नहीं की गई थी और गैर कानूनी तौर पर कमर्शियल सरगर्मियां जारी थी। LDA टीमों ने केनाल रोड, वहदत रोड और सब्जाजार के इलाकों में ऑपरेशन किया। कमर्शलाइजेशन फीस, पेनल्टी फीस की अदम अदायगी पर केनाल रोड और LDA कंट्रोल्ड एरिया में 12 इमलाक को सील किया गया। इसी तरह टीमों ने रिकवरी ऑपरेशन के दौरान वहदत रोड और सब्जाजार में 27 इमलाक सील कर दी। सील की गई इमलाक में निजी स्कूल, क्लिनिक, वर्कशॉप, सैलून, पेंट, हार्डवेयर स्टोर, बुक शॉप, क्लास शॉप, फूड पॉइंट, दुकानें, दफातर और दीगर इमलाक शामिल हैं। ये चीफ टाउन प्लानर 2 अजहर अली की ज़ेर निगरानी ऑपरेशन किया गया। आपका बहुत शुक्रिया ज़ैनुल आबदीन।
रेलवे पुलिस की कार्रवाई। ट्रेन में खवातीन को हिरासा करने और खवातीन को तशद्दुद का निशाना बनाने वाले 3 मुल्जिमान गिरफ्तार। मुल्जिमान ने चंद रोज कबल लाहौर से नारोवाल सफर करने वाली खवातीन को हिरासा किया। खवातीन के मना करने पर मुल्जिमान ने नारंग मंडी रेलवे स्टेशन पर साथियों को इकट्ठा करके खवातीन पर तशद्दुद किया। फहद अमीन से मजीद जानते हैं। फहद बताइए क्या मामला है ये? जी बिल्कुल, रेलवे पुलिस लाहौर की जानिब से ये कार्रवाई की गई है। ट्रेन में खवातीन को हरासा करने और नारंग मंडी रेलवे स्टेशन पर खवातीन को तशद्दुद का निशाना बनाने वाले 3 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया गया है। मुल्जिमान ने चंद रोज कब जो है वो ट्रेन लासानी एक्सप्रेस पर लाहौर से नारोवाल सफर करने वाली खवातीन को हरासा किया था। खवातीन के मना करने पर मुल्जिमान ने नारंग मंडी रेलवे स्टेशन पर साथियों को इकट्ठा करके खवातीन पर तशद्दुद किया। खवातीन पर तशद्दुद करने का वीडियो क्लिप जो है वो वायरल हुआ, जिस पर आईजी रेलवे पुलिस ने वाक़े का सख्त नोटिस लेते हुए मुल्जिमान की फौरी गिरफ्तारी के लिए अहकाम जारी किए थे। रेलवे पुलिस लाहौर डिवीजन ने कार्रवाई करते हुए मुल्जिमान रेहान, खालिद, मोहम्मद हुज़ैफा और मोहसिन अली को 2 रोज में जो है वो गिरफ्तार कर लिया है। तर्जुमान का कहना है कि मुल्जिमान से मजीद तफ्तीश जारी है और इनके साथी जो मुल्जिमान थे उनकी गिरफ्तारी के लिए भी जो है वो छापे मारे जा रहे हैं। जी ठीक है फहद, आपका शुक्रिया। चेयरपर्सन चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो सारा अहमद की सरबराही में सूबाई गोल मेज कॉन्फ्रेंस चाइल्ड मैरिज, सिनफी तशद्दुद और समाजी हमआहंगी के हवाले से किया गया ये सेमिनार है। चेयरपर्सन सारा अहमद कहती हैं कम उम्री की शादी और सिनफी तशद्दुद की रोकथाम के लिए अमली इक़दाम किए जा रहे हैं। पंजाब असम्बली में चाइल्ड मैरिज बिल जल्द मंजूर किया जाएगा। तफसीलात के लिए बात करेंगे सामिया सईद से। सामिया, आगाह कीजिए। बिल्कुल, चेयरपर्सन चाइल्ड प्रोटेक्शन मेंबर्स पंजाब सारा अहमद की गोल मेज कॉन्फ्रेंस की सदारत कॉन्फ्रेंस का इनेकाद काउंसिल के इख्तियारात से एनजीओ की जानिब से किया। अलबत्ता इनेकाद चाइल्ड आपको बता रहे हैं कि चाइल्ड मैरिज, सिनफी तशद्दुद और समाजी हमआहंगी के हवाले से इस सेमिनार का इनेकाद किया गया है। चेयरपर्सन सारा अहमद कहती हैं कम उम्री की शादी और सिनफी तशद्दुद की रोकथाम के लिए अमली इक़दाम किए जा रहे हैं। पंजाब असम्बली में चाइल्ड मैरिज बिल जल्द मंजूर किया जाएगा। चेयरपर्सन चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो सारा अहमद की सरबराही में सूबाई गोल मेज कॉन्फ्रेंस चाइल्ड मैरिज, सिनफी तशद्दुद और समाजी हमआहंगी के हवाले से ये सेमिनार मुनक़्क़िद किया गया है। सामिया सईद से मज़ीद जानते हैं। सामिया, बताइए। प्रोटेक्शन ब्यूरो असेंबली पंजाब सारा अहमद की सूबाई गोल मेज कॉन्फ्रेंस में सदारत कॉन्फ्रेंस का इनेकाद के इख्तियारात से पीटीएनजीओ। आपका शुक्रिया सामिया। वापस आएंगे। आपका बहुत शुक्रिया आतिफ। इसके साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही। मज़ीद खबर और मालूमात के लिए देखते रहिए लाहौर न्यूज़ या विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट।